Guys, and welcome back to the series of environmental studies. This is the third video. In this video में we will discuss about productivity. Productivity क्या होती है? There is again productivity is also of two types. One is the primary productivity, other one is the secondary productivity. उसके बाद we will talk about the gross primary productivity, that is GPP. Then net primary productivity क्या होता है? NPP. Then we will study about ecological pyramids, right? And the different types of ecological pyramids, like pyramid of energy, pyramid of biomass, pyramid of number. फिर in pyramids maybe there are two types, like one is the upright pyramid and other one is the inverted pyramid. So we will study about each one of them in detail. So stay tuned for this lecture series. So let's begin with it. So today we are going to study about the productivity of ecosystem. Okay, we are going to study about the productivity. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि productivity actually होता क्या है. Productivity का मतलब क्या है? The rate of formation of biomass in the ecosystem. ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब है सिंपली द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास. बायोमास का फॉर्मेशन किस रेट पे हो रहा है इकोसिस्टम में, दैट इज प्रोडक्टिविटी. इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज एनर्जी एक्यूमुलेटेड इन द प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस. इसको ये भी बोल सकते हैं हम, कितनी एनर्जी एक्यूमुलेट हुई है प्लांट्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ you are going to tell me what is photosynthesis and what is the equation of photosynthesis in the comment section below. Okay, now we know that there are two types of productivity. One is primary productivity and the one is the secondary productivity. See, when I talk about primary productivity, जब भी मैं primary productivity की बात करती हूँ, it means I am talking about the producers, that is autotrophs. Autotrophs are the one which can prepare their food by themselves, right? So primary productivity refers to the generation of biomass from autotrophic organisms such as plants. ठीक है, तो मतलब कितना बायोमास जनरेट हुआ, कहाँ से? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट से. ठीक है, नाउ किस प्रोसेस के थ्रू वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस. सो इट इज द प्राइमरी टूल फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल from inorganic compounds such as carbon dioxide and water. Now we can say that primary productivity is again divided into two types. One is GPP and other one is NPP. ठीक है, GPP मतलब gross primary productivity. तो जब भी मैं I will only say GPP and NPP. Okay, तो आप समझ जाना कि when I'm talking about GPP it means I'm talking about the gross primary productivity, and when I'm talking about NPP I'm talking about the net primary productivity. तो जब भी मैं gross primary की बात करती हूँ, जब भी मैं किसी चीज के gross के बारे में बात करती हूँ, तो it means total. ठीक है, तो यहाँ पे primary productivity का मतलब क्या है कि producers ने कितनी 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 एनर्जी ट्रैप की है, राइट? सो द सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज GPP. All the organic matters produced falls under the gross primary productivity and it depends upon the photosynthetic activity and the environmental factors. ठीक है, तो जितनी भी सोलर एनर्जी ट्रैप की है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में, उसको बोलेंगे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब जब भी नेट की बात करूंगी तो इट मींस GPP minus जो भी energy loss हुई है in the respiration. So it is the net energy stored in the plants. This energy serves as a food for the animals that feed on plants. Okay. It is measured as the amount of organic matter produced in a community in a given time. So this is about the primary productivity. Whenever I talk about primary productivity, it means I am talking about what? I'm talking about the producers, the autotrophs. It consists of two parts. One is GPP, gross primary productivity. Other one is the net primary productivity. Gross primary productivity is nothing but the solar energy trapped by the photosynthetic organisms, right? When I talk about the net primary productivity, मतलब GPP minus जो भी उन्होंने एनर्जी लॉस्ट की है इन रेस्पिरेशन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ये डिफरेंस है. जब भी मैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करती हूँ, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट?
आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ इंक्रीज इन बायोमास ऑफ द ऑटोट्रॉप्स. ओके, कितना बायोमास इंक्रीज हो रहा है इन ऑटोट्रॉप्स. लेकिन जब भी मैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करती हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ इंक्रीज इन बायोमास ऑफ हेटेरोट्रॉप्स. तो इन सिंपल टर्म्स यू कैन अंडरस्टैंड, in case of primary productivity I am talking about autotrophs, but in case of secondary productivity I am talking about heterotrophs. ठीक है, तो वो हम यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी कितना हो रहा है कंज्यूमर लेवल पे. ठीक है, तो मतलब हेटेरोट्रॉफ लेवल आ गया, जो फीड कर रहे हैं किसके ऊपर, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर. इट कीप्स मूविंग फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर अनलाइक द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, this process occurs as a result of organic materials being transferred between various trophic levels. Okay, it is also referred to as rate of increase in biomass of heterotrophs that I have already told you. इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं, एनिमल्स, फंजाई, ये स्टार्ट ही हेटेरोट्रॉफ से होता है. ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया प्राइमरी और सेकेंडरी में. अब इसमें आती है एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस secondary productivity. If I talk in layman terms, it is simply but the primary productivity जो हमने पढ़ा है that is at the autotrophic level and secondary at the consumer level, at the heterotrophic level. Okay, so it refers to the storage of organic matter not used by the heterotrophs or consumers. जब भी मैं नेट की बात करती हूँ तो which is it means it is something which is not used by the heterotrophs or consumers, means it is equivalent to net primary production minus consumption by the heterotrophs during the unit period. ठीक है, तो सिंपली प्राइमरी माइनस सेकेंडरी, तो जो चीज यूज नहीं हुई है दैट इज सिंपली बट द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. Now there are some definitions that you must understand when you study the concepts of productivity, that is the standing crop and the standing state. Now what is standing crop, ये बहुत ही important terms हैं which you should know about them, because when you will study about the environmental science in details, these are the basic terms that you should know about them. That is standing crop and standing state. So when I'm talking about standing crop, it means I'm talking about the living material. Okay, मतलब biomass of living material in an ecosystem at a particular time, or the organic material. Standing crop में I'm talking about the biomass of the living material in इकोसिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम. यही एक डिफरेंस है. यहाँ पे मैं लिविंग मटेरियल की बात कर रही हूँ स्टैंडिंग क्रॉप में, लेकिन लुक एट द स्टैंडिंग स्टेट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द इकोसिस्टम. तो अगर आपसे पूछता है कि कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में डिफरेंस क्या है, तो स्टैंडिंग क्रॉप में आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द लिविंग मटेरियल in an ecosystem. Okay, the biomass कितना हो सकता है living material का, the amount of living material present in an ecosystem, that is standing crop. When I'm talking about the standing state, means I'm talking about the biomass or the amount of non-living material, or you can say the inorganic material in an ecosystem. ठीक है, so this is about. Now let's talk about another important concept, that is ecological pyramids. इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या हैं? पिरामिड्स अभी हमने मैंने आपको भी पहले वाले जो पीपीटीज करवाए थे, पहले वाले जो वीडियोस थे, उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट द ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक to those videos and look at those videos first and then come back to this video. Otherwise you will not be able to understand what actually ecological pyramid is. क्योंकि इसमें मैं I am using a term that is trophic level. Now you should know what actually trophic level is, which I have already discussed in my previous videos. So I'm requesting you to look at those videos first and then come back to watch this video to gain more clarity. Okay, so when I'm talking about ecological pyramids, I'm talking about the graphical representation of trophic level in an ecosystem. मतलब ट्रॉफिक लेवल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इकोसिस्टम में. ठीक है, नाउ दैट इज सिंपली बट द इकोलॉजिकल पिरामिड. नाउ पिरामिड्स कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स डिपिक्टिंग द स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल्स. इस टाइप के कुछ बार्स होते हैं, अभी बताती हूँ मैं आपको क्या होते हैं. इस टाइप के कुछ बार्स होते हैं दैट डिपिक्ट द पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल. The length of each bar represents a total number of individuals or biomass or energy at each trophic level in an ecosystem. तो इसकी जो लेंथ होती है बार की, वो रिप्रेजेंट करती है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है या बायोमास है या एनर्जी है.
The food producer forms the base of the pyramid. Now this is the base of the pyramid. This is the food producer. Okay. And the top carnivore forms the tip. और यहाँ पे carnivores आते हैं. ठीक है. Other consumer बाकी बीच में रहते हैं. तो आपको ये समझना होगा the producer is at the base and the top carnivore is at the top. बाकी सब बीच में is the middle portion is occupied by the these consumers. Okay. Now there are three kinds of ecological pyramids. One is pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. अब सबसे easy अगर मैं बात करूंगी तो that is pyramid of energy. इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं, मतलब बहुत ही easy है. Now even they are easy, pyramid of number and pyramid of biomass, but there are some exceptions which you have to understand and you have to learn because they come in exams usually. Okay. When I'm talking about pyramid of number, from the word itself you can understand number. I'm talking about the total number of individuals of different species. ठीक है. At each trophic level मैं number of individuals की बात कर रही हूँ यहाँ पे. I'm talking about what? I'm talking about the number of individuals. Now it can be of two types. ठीक है. One is upright, other one is inverted. अब अगर मैं आपको एक upright होता है और एक होता है inverted. ठीक है. अब ध्यान से सुनो upright क्या होता है. देखो मैं यहाँ पे एक बार बना रही हूँ, that is upright. ये होता है upright. अब इसको मैं उल्टा कर दूँ, that is inverted. ठीक है. This is simply what upright and inverted means. Now when I'm talking about upright pyramid, you should know कि कौन से ecosystem में upright मिलता है और कौन से ecosystem में आपको inverted मिलता है. It can be seen when I'm talking about the upright pyramid. It can be seen in the grassland ecosystem and the pond ecosystem. अगर मैं upright ecosystem की बात करती हूँ तो वो आपको grassland ecosystem में मिलेगा और pond ecosystem में मिलेगा. अब upright ऐसे बन रहा है, मैंने आपको बताया, देखो look here, upright is in this way. It means नीचे मैंने आपको बताया अभी pyramids का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, नीचे हमेशा प्रोड्यूसर होता है फूड, बेस पे हमेशा प्रोड्यूसर होगा, ऊपर हमेशा कार्निवोर होगा, राइट. बीच में सारे कंज्यूमर्स होते हैं. अब अगर मैं बात कर रही हूँ ग्रासलैंड्स की तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होंगे यानी कि ऑटोट्रॉफ्स, फिर कौन से आएंगे, हर्बीवोर्स आएंगे जो हर्ब्स खाते हैं. तो सबसे ज्यादा नंबर प्रोड्यूसर्स का होगा, राइट. हर्बीवोर्स खाने का नंबर थोड़ा कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द प्रोड्यूसर्स. फिर मैं ऊपर जाऊंगी तो प्राइमरी कार्निवोर्स आएंगे जो कि फीड करते हैं किसके ऊपर, हर्बीवोर्स के ऊपर. फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स आते हैं एंड देन कम्स द टॉप कार्निवोर. तो उनका नंबर और भी कम हो जाता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में. तो अपराइट का एग्जांपल हो गया आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम. ओके. नाउ पॉन्ड इकोसिस्टम का भी एग्जांपल है आपका. पॉन्ड इकोसिस्टम भी एक तरीके का आपका अपराइट इकोसिस्टम है. सिंपल सी बात है. देखो सबसे पहले आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे या जू प्लैंक्टन्स होंगे पॉन्ड इकोसिस्टम में. उसके बाद थोड़ी फिशेस आएंगी, फिर बड़ी फिशेस आएंगी एंड देन फिशेस. तो नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट. बड़ी फिशेस का नंबर कम होगा और उसके बाद बड़ी फिशेस को बर्ड्स ले जाएंगे उठा के, तो उसका नंबर और भी कम हो जाएगा. तो दैट इज अबाउट द पॉन्ड इकोसिस्टम wherein we are talking about that they have the upright pyramid. Now let's talk about the inverted pyramid. तो upright का सिंपल सा मतलब है कि with each higher trophic level, जैसे जैसे higher trophic level की तरफ जाएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. ओके. देखो आपको इसके फिगर से पता चल रहा है, ऊपर कम हो रहा है, नीचे ज्यादा है, बेस बड़ा है. अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी दैट इज इन्वर्टेड. अब क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, ज्यादा है, और बेस क्या है इसका, दिस इज द बेस ना. अब आप इसको बेस बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे बेस. दिस इज कॉल्ड एज बेस नाउ. ठीक है. तो बेस बहुत ही नैरो है और ऊपर क्या हो रहा है, वाइड हो रहा है. तो अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ पिरामिड ऑफ नंबर्स में कि इन्वर्टेड किसका होगा, तो दैट इज ट्री इकोसिस्टम. ट्री इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होगा. मैं आपको बता देती हूँ कैसे. देखो सबसे पहले एक ट्री होता है. ठीक है. एक ट्री तो बहुत कम होते हैं, एक ही मतलब एक या दो ट्री समझ लो, कुछ ट्री समझ लो आप. ठीक है. लेकिन हर्बीवोर्स उनके ऊपर जो बर्ड्स होंगी वो ज्यादा होंगी. जितने ट्रीज हैं उतनी तो बर्ड्स नहीं है ना. ट्रीज तो कम है एज कम्पेयर टू बर्ड्स. एक ट्री के ऊपर ही आप लगा लो कम से कम, अगर बहुत ही अच्छा सा डेंस ट्री है तो कम से कम भी उसके ऊपर अभी तो बर्ड्स की पॉपुलेशन आर ड्विंडलिंग, बट अगेन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी भी है कि अगर एक ट्री है उसके ऊपर 20-25 बर्ड्स होंगी. तो नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, मैं नंबर की बात कर रही हूँ यहाँ पे. तो मैं एक ट्री की बात कर रही हूँ और उसपे मैं बोल रही हूँ लेट्स से 25 बर्ड्स हैं. तो नंबर किसका ज्यादा है, बर्ड्स का या ट्री का, बर्ड्स का ऑफ कोर्स. उसके ऊपर फिर पैरासाइट आएंगे. ठीक है. तो पैरासाइट्स का नंबर और भी ज्यादा होगा. फिर उसके ऊपर हाइपर पैरासाइट्स आएंगे, उनका नंबर और भी ज्यादा होगा, वो तो मिलियंस और ट्रिलियंस में भी हो सकते हैं, राइट. तो दिस इज अबाउट द ट्री. ट्री के केस में पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा इन्वर्टेड रहेगा.
आपको ये याद करना पड़ेगा कि पिरामिड ऑफ नंबर की बात की है मैंने, सिंपल सा अपराइट और इन्वर्टेड दो टाइप्स के होते हैं। अपराइट ग्रासलैंड के पॉपुलेशन में होता है या फिर आपका पॉन्ड इकोसिस्टम में होता है। आई हैव टू गिवन यू द एग्जांपल आल्सो। Inverted in case of the tree ecosystem. Okay, now let's talk about the biomass, pyramid of biomass. What do you mean by biomass? Biomass का मतलब क्या है, पहले समझो biomass का मतलब क्या है। टोटल स्टैंडिंग क्रॉप, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल, राइट। अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में डिफरेंस क्या होता है। आप मुझे अभी के अभी लिख के बताइए इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट बायोमास, इट मींस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप। Okay, so right, I think most of you are able to understand now. बायोमास के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं स्टैंडिंग क्रॉप की बात कर रही हूँ। इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मास क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर टाइम पे। इट इज डिटरमाइंड बाय कलेक्टिंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग ईच ट्रॉपिक लेवल सेपरेटली, और उसका मेजर करते हैं उसका ड्राई वेट। ठीक है, इसको आपने कैसे डिटरमाइन करना है, आपने सारे ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करना है जो भी ऑक्यूपाई करते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल को अलग अलग, एंड देन यू हैव टू मेजर इट्स ड्राई वेट। सिंपल सा। तो बायोमास में मैं स्टैंडिंग क्रॉप की बात कर रही हूँ। स्टैंडिंग क्रॉप में क्या डिफरेंस था स्टैंडिंग स्टेट से, यहाँ पे आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द लिविंग मटेरियल कि कितना मास ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है एट अ पर्टिकुलर टाइम हर एक ट्रॉपिक लेवल में। तो यहाँ पे भी again there are two types, one is upright, other one is inverted. When I am talking about upright, simply ये मतलब है इसका, this is the figure that you are going to draw. When I am talking about inverted, इसको उल्टा कर देंगे तो inverted बन जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि बायोमास के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे upright कौन सा होगा, सोचो खुद। Of course the grassland ecosystem, यहाँ पे अपराइट ग्रासलैंड होगा और फॉरेस्ट होगा। कैसे, देखो ग्रासलैंड में ग्रासेस होती हैं, ठीक है, उनका लिविंग उनका बायोमास आपने ले लिया, उसके बाद ग्रासेस के ऊपर कौन फीड करेगा, रैबिट, रैट्स, माइस फीड करेंगे, मतलब हर्बीवोर्स फीड करेंगे। उनका बायोमास तो ग्रासेस के बायोमास से कम है। उसके बाद क्योंकि वो कम होंगे, राइट, फिर स्नेक्स और लिजर्ड्स आएंगे, उनका बायोमास और भी कम होगा। फिर सबसे ऊपर बर्ड्स आती है, उनका बायोमास और भी कम होगा। तो ये अपराइट हो गया। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अभी के अभी मैंने आपको एग्जांपल भी समझाया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। ठीक है, तो वही वो भी अपराइट होगा। अब इसमें इन्वर्टेड किसका होगा, पॉन्ड इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होगा। देखो सबसे ज्यादा, देखो बायोमास यहाँ पे मैंने ऐसे बताया इन्वर्टेड ऐसे बनेगा, तो यहाँ पे तो फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं हमेशा, उसके बाद ऊपर आपके जू प्लैंक्टन्स आते हैं, उनका साइज उनका बायोमास ज्यादा होगा फाइटोप्लैंक्टन से। उसके बाद आपके स्मॉल फिशेस आते हैं, उनका और भी ज्यादा होगा बायोमास। फिर आपके लार्ज फिशेस आते हैं, तो लार्ज फिशेस का बायोमास और भी ज्यादा होगा। अंडरस्टूड। सो these are again of two types, upright and inverted. Upright मतलब grassland और forest, और inverted मतलब pond ecosystem. Simple. For most ecosystems on land, the pyramid of biomass has a larger base. This is simply explained here. You can read it out. The biomass of producers is at maximum. This is again what I have explained it to you. Simply it is written there. You can read it out again. In a very simple language it is written. Now, inverted biomass also I have given you the example. The example that I have given you in the previous slide, the same example is being explained here. So you can please read it out again and you will be able to understand it properly. Now let's talk about the pyramid of energy. I told you that pyramid of energy का एक simple सा concept है, that is it is always upward. That is why I told you that it is very easy. और upward क्यों होगा ये आपको समझना है। पिरामिड एनर्जी का मतलब क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, राइट। इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल एंड द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रांसफर, मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, राइट। तो जब भी हम एक ट्रॉपिक लेवल से, इसके पीछे का फंडा सिंपल सा ये है कि जब भी हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो एनर्जी लॉस्ट होती है, इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत सारे टर्म्स में। ठीक है, तो जब भी हम ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो इसलिए वो एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज ऑलवेज एन अपराइट, ये हमेशा अपवर्ड होता है इसका पिरामिड विद अ लार्जर बेस एट द बॉटम। आप कोई भी कोई भी पिरामिड ले लीजिए, वेदर इट्स ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, पॉन्ड, ये हमेशा अपराइट होगा। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी कम होती जाती है। ठीक है, 10% एनर्जी का एक रूल है, आपको अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे, एनवायरमेंट में ही है।
10% लॉ बोलते हैं इसको, मतलब हर एक जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे ट्रॉपिक लेवल पे तो 10% एनर्जी लॉस्ट होती है इन द टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, मे बी रिप्रोडक्शन और इन अदर टर्म्स, राइट? So this is simply about the pyramid of energy. I hope you like this video and I hope you have got the conceptual clarity about pyramids, ecological pyramids, about the productivity, about the difference between the standing crop and standing state. So guys, can you please guess what's coming up next? Guess what's coming up next? And please use the chat box. Okay, so I'm not going to tell you now what is coming up next. For that you have to wait for the next videos. Stay tuned. और next video तभी आएगी जब आप इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे. Thank you so much.